accompanied Guru Sahib through all the travels in the world. And it was the rabab. He was playing the music on rabab. This is the instrument which he carried along with him. We are now comparing at Guru Sahib the two, you see, music therapies are two musical instruments, rabab and harmonium, and which we will find out which of the two has better capability to induce relaxation and has anti-stress or anxiety measures. We are also having a well-being scale, mental well-being scale, along with the biomarker of salivary glands, salivary secretions, and other features also, clinical parameters also. So these three features will be taken into consideration, and we will compare these two musical instruments, that is rabab and harmonium. And then we have started only about a few days back, and we will get the results after about, say, 3-4 months time. I again request you to listen to the you see, therapeutic measures by Dr. Pankaj Mala. We are also having Astha Luthra, who is the again a very renowned figure in this art therapy, musical therapy, and these two you see, experts will be delivering the practical and conducting the practical session with you, with the students, and they will discuss how and in which way the music, you see, offers therapeutic regimen to the normal people to improve mental health, and to those who are under stress to improve or to relieve their stress. Now, I will request first Dr. Astha Luthra to please take over the session, and this will be followed by Dr. Pankaj Mala Sharma, retired from Punjab University, Chandigarh. Thank you very much, Dr. Mrs. Astha Luthra. Please carry on. Thank you. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Good morning, everybody. Can you say it loudly at your places? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Happy to see so many. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Astha, you're on mute. You can say good morning. Good morning. Okay, can we now put our devices on mute? Perfect. In the count of 5, let's put our devices on mute. 5, 4, 3. Let's put our devices on mute. 2, 1.
and 0. Thank you, everybody. Thank you. Okay, I think there is still one device which is not on mute. So if we can request them as well to put themselves on mute. Thank you. Okay, so when I am going to ask you to do some task, you can do it without muting, and your teachers and your mentors can see at your places. Okay, so whenever I'm going to ask you to do something, then you can do it for, and your mentors and your teachers, आपके आसपास जितने लोग हैं वो आपको बता पाएंगे कि आपने सही बताया कि आपने गलत बताया. Okay, so you can be okay not unmuting yourself and doing the activities. Okay, is that okay? You can give me a thumbs up. I can then understand then everybody's ready. Oh, perfect. I can see thumbs up coming up. Thank you. Okay, so let me try sharing my screen. Can you please give me the access to share my screen, please, the host? I am waiting for the access given for the screen share. Can you please give me the access to screen share? Oh, thank you. Okay, so perfect. We are today going to talk about what is creative art therapy and why do we need it for self-care. हमें creative art therapy क्यों चाहिए अपनी care करने के लिए? Okay, so इसकी थीम के अंदर हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसा गाना जो हमारे थॉट्स को इवोक करे. लेट्स से मेरा आज का फेवरेट गाना. तो अगर आपके पास पेन और पेपर है या पेंसिल और पेपर है आसपास, तो टेक दैट पेंसिल एंड पेपर एंड राइट डाउन वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स नेम व्हिच इज राइट नाउ करंटली योर फेवरेट. Everybody done? If you are done, you can pick up your paper and show it to me like that. So your favorite song right now. इसी के साथ मुझे ये भी बताइए, आप बिना म्यूट करे भी बता सकते हैं अपने मेंटर्स को, अपने टीचर्स को, आपके आसपास जितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, उन सबको, that why do you think your favorite song will always remain your favorite या ये चेंज होते रहते हैं? अगर ये चेंज होते रहते हैं, then raise your hand, then I can see you raising your hands. Yeah, perfect. You all. Yes, हमारे फेवरेट सॉन्ग्स चेंज होते रहते हैं, हमारी लाइटलीनेस चेंज होती रहती है, हमारी पसंद चेंज होती रहती है, हमारा शायद मूड भी चेंज होता रहता है. यस, उसके अकॉर्डिंग हमारी नीड्स चेंज होती हैं. इसीलिए हम आज बात करने वाले हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए ये क्रिएटिव आर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों यूज की जा सकती है. So we are talking about youth, which you guys are going to be, as in you are the ones who are going to lead it. Now, अगर हम बहुत ज्यादा सैड रहें, अगर हम बहुत ज्यादा हैप्पी रहें, अगर हमें अपने आप को स्टिमुलेट या अपना मूड चेंज करने के लिए कुछ चाहिए, तो म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, कलर्स हो गए, बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं. Right? So what we are going to talk is
we are going to talk about creative art therapy for self-care. So I am Astha Luthra and I am a clinical music therapist. और मेरा काम क्या होता है? मेरा काम होता है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ, सभी लोगों के साथ उनको ये हेल्प करके देना कि वो अभी जो सोच रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो सकता है। उसके लिए वो मूड चेंज कर सकते हैं, वो पॉजिटिव सोच सकते हैं, या वो बहुत ज्यादा हाइपर हो तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिफोर वी हमें सेल्फ केयर की क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है? जब हम सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं, वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। लेट्स से आज मैं रोज स्कूल जाती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, मुझे बहुत दिक्कत होती है सुबह उठ के बेड से निकल के और स्कूल पहुंचने में, या मुझे बहुत तकलीफ होती है रात को सोने में। तो मुझे इस टाइम पर किसी ऐसी चीज की, एक्सटर्नल चीज की जरूरत है जिससे कि मैं अपने ब्रेन को काम डाउन कर सकूं और अपने काम पर फोकस कर सकूं। सो इस चीज के लिए दिस इज कॉल्ड सेल्फ केयर, so that I can balance my lifestyle, I can balance myself and can perform better. इसी से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट करती है। आज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एग्जाम का एंजाइटी हो रहा है, या मैं बहुत सैड हूँ कि क्या होगा, आज की प्रेपरेशन मुझे उतनी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं शायद कुछ गड़बड़ लिख के आऊँ एग्जाम्स में या कुछ गड़बड़ हो जाए। ये सब चीजों में क्या होता है, शायद किसी को पेट में दुखता है, किसी को सर में दुखता है, किसी को कुछ और होता है, कोई शाउट करता है, कोई बिल्कुल क्वाइट हो जाता है, कोई शायद रोता है। हम सबके अलग अलग तरीके होते हैं ऐसे टाइम पर रिएक्ट करने के। और ये रिएक्शंस के लिए हमारी बॉडी बहुत टोल लेती है, हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, हमारी बॉडी बहुत वियर्ड फील करती है। ऐसे टाइम पर हमारे को सेल्फ केयर की जरूरत होती है, और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये है मेंटल हेल्थ वीक। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करती है। इसलिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ ऑल एंड व्हाट ऑल कैन वी डू टू हैव अ बेटर मेंटल हेल्थ। Now, what I am going to do is that what I want you to follow. Okay? So, आपको स्पीकर्स ऑन नहीं करने हैं, आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, बट जब मैं यहाँ से कर दूं उसके बाद आपको मुझे फॉलो करना है। आर यू ऑल रेडी? इफ यू आर रेडी, गिव मी अ थम्स अप। परफेक्ट। ओके, सो मैं फिनिश करूंगी और आप स्टार्ट करेंगे। ओके? एग्जैक्ट कॉपी करना है। ओके, नो एक्स्ट्रा, नो लेस।
ha ha. Hoo ha. Ha ha. Ha ha ha. Oh ho. Oh ho. ये क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? हा 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 हो हो. Perfect. I can see you all doing very well. Clap for yourself. Well done, everybody. Okay. So when we are talking about self-care, we are talking about quite many things. Okay. We are talking about something called as colors, art and painting. Why do we talk about art and painting? Is because जब हम सोचते हैं कि ग्रास कौन से कलर का होता है, तो ब्रेन कौन सा कलर बोलता है? ग्रीन. ओह यस. और अगर हमें सोचूं कि अमृतसर में जो गुरुद्वारा है वो कौन से कलर का है, तो सबका ब्रेन कौन सा कलर बोलता है? गोल्डन. ओह यस, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन टेम्पल. ओके. मैं बोलूं कि पानी कौन से कलर का है, तो बहुत सारे व्यूज आएंगे. कोई बोलेगा व्हाइट है, कोई बोलेगा ब्लू है, राइट? और कोई बोलेगा उसको स्नो बना दो तो प्योर व्हाइट हो जाता है, स्पार्कलिंग व्हाइट. यस. कोई बोलेगा ट्रांसपेरेंट है, कोई बोलेगा कलर ही नहीं है. सो हम सब के थॉट प्रोसेस अबाउट कलर्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं, और हर कलर हमारे ब्रेन को बहुत डिफरेंटली स्टिमुलेट करता है. ऐसे ही when we talk about clothes, it is very very important that it helps us to have our self-care ambitions. Now when we talk about clothes, किसको पसंद है स्कूल बिना नहाए, बिना तैयार हुए ऐसे ही आ जाना? किसी को पसंद है तो रेज योर हैंड्स. किसी को पसंद है बिना नहाए धोए, बिना तैयार हुए, बिना प्रेस किए, ढंग से कपड़े पहन के? किसी को पसंद है? नहीं. तो जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी चिंता करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तो हम अपने क्लोथ्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. और ये एक बहुत अच्छा तरीका है दूसरों को जानने के लिए भी. लेट्स से कोई हमारा फ्रेंड स्कूल आया है या आई है, और उसके ना बहुत गंदे मंदे क्लोथ्स हो रहे हैं, खूब मिट्टी लगी है. आप सबसे पहले जाके उसको पूछेंगे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, आज कुछ हुआ क्या? आप इसलिए पूछेंगे क्योंकि आपको आपका ब्रेन ये सोचना शुरू कर देगा शायद ये कहीं गिर गई होगी, या इसको किसी ने धक्का दे दिया होगा, या ये चलते चलते भागी होगी और ग्राउंड में गिर गई होगी. कुछ तो गड़बड़ है. लेट्स फाइंड दैट आउट. So clothes are one of the major most important thing that also depends upon our personal hygiene. So when we talk about self-care, it is one of the very 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 important thing to notice. ऐसे ही कलर्स है. लेट्स से अगर आप अपने ड्राइंग शीट में या पेपर पर सब कुछ ब्लैक 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 कलर कर दें, ओके, आपका पूरा पेपर सिर्फ ब्लैक स्क्रिबल्ड हो, तो मैं आपसे जरूर पूछने आऊंगी कुछ गड़बड़ है क्या, आज कुछ हुआ क्या, गुस्सा आ रहा है क्या, समथिंग रॉन्ग? तो दीज आर ऑल
parts of our self-care. Now, when we talk about writing, there are few people and few of us are very interested in few things. One is जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, उसके जो लिरिक्स होंगे, जो उसके बोल होंगे, वो शायद आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हों, या आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको मैच करते हो, या आपकी फीलिंग्स को बयां करते हो, तो इसलिए आप उसके लिरिक्स की वजह से उस सॉन्ग को पसंद कर रहे हो। या फिर लेट्स से आज मुझे बहुत गुस्सा आया, या मेरा थॉट प्रोसेस जो भी है मैं उसको डायरी में लिखती हूँ। सो बहुत सारे लोग हैं जो डायरी लिखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चिट्ठी लिखते हैं, हम बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं, हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम बहुत सारे टेक्स्ट करते हैं। तो इससे भी हमारे बारे में और हम अपने बारे में केयर कर सकते हैं। या तो हम दूसरों को बता सकते हैं हम कैसा फील कर रहे हैं, या हम अपने लिए खुद भी जान सकते हैं कि आज तो कुछ गड़बड़ है, आज मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब आ रही है, मैं पेपर में बहुत फास्ट फास्ट लिख रही हूँ तो कुछ अजीब हो रहा है। तो ये सब चीजें मुझे सेल्फ केयर के लिए प्रवोक करती हैं और मेरे बारे में मेरे को ये समझाती भी है कि मैं अपने आप को कैसे जानूं। ऐसे ही म्यूजिक, जिस दिन बहुत सैड मूड होता है उस दिन सारी प्लेलिस्ट सैड सॉन्ग्स की चलती है, जिस दिन बहुत अच्छा मूड होता है उस दिन हम सिर्फ डांस करने वाली वीडियोस या ऑडियोज या म्यूजिक को सुनते हैं, राइट। सो खुशी के लिए अलग ट्यून, सैडनेस के लिए अलग ट्यून। जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हम घर नाचते हुए पहुंचते हैं, राइट, या हम स्कूल भी नाचते हुए पहुंचते हैं, या फिर बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो नाचते हुए ही अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। सो दैट्स व्हाट बेसिकली टेल्स अस दैट हाउ आर वी फीलिंग। और हम बिल्कुल नहीं हिले, हमारे कंधे नीचे हो जाए, हम लटक जाएं और घर पहुंचे तो मम्मी को भी घर पहुंच के पता लग जाता है आज तो कुछ गड़बड़ है। सो हम अपनी तो केयर कर ही रहे हैं, ये सब स्टिमुलेशंस दूसरों को भी हेल्प करती है ये बताने के लिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं। ऐसे ही फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा मीडियम है ये बताने के लिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स से मैं आज सारी फोटोज जितनी भी क्लिक करूं और सबको ग्रे कर दूं या ब्लर कर दूं, तो मुझसे कोई ना कोई तो पूछेगा ना, क्या हुआ, सब ठीक है ना, ये सब ग्रे क्यों कर दिया है, राइट। और कोई फोटो में अगर मुझे फोटो खींचा जाए और मुझे आधा काट दिया जाए तो लोग मुझसे पूछेंगे ना, ये एंगल ऐसा गड़बड़ क्यों किया, ऐसा क्या हुआ था जो इतना एंगल गड़बड़ कर दिया, राइट। तो जब हम फोटो लेते हैं तो हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। लोगों को ये समझ आता है कि मुझे माउंटेन्स पसंद है, कि मुझे समंदर पसंद है, कि मुझे रिवर पसंद है, कि मुझे गुरुद्वारा जाना पसंद है, कि मुझे फ्रेंड्स के साथ मिलना पसंद है, कि मुझे फैमिली के साथ मिलना पसंद है। तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार रहते हैं, वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि दूसरे लोगों के थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, और वही आपके भी इंडिकेट करते हैं। जब आप फोटो खींचते हैं, जब आप पिक्चर्स लेते हैं, जब आप उन्हें अपलोड करते हैं, जब आप उन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करते हैं, तो वो दिखाता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंस किस चीज की है लाइफ में। ये सब चीजें सेल्फ केयर के अम्ब्रेला के अंदर आती है। अब हमें सेल्फ केयर की क्यों जरूरत होती है, हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। हम स्कूल आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, घर जा सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, फिर सो जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, अगले दिन वापस स्कूल आ जाएंगे। Why do we need all these things? We need all these things to prevent burnout. कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो ऐसे बूम करके फूटते हैं, यस। बहुत इरिटेशन हो जाए तो ऐसे जुक करके हमारा गुस्सा बाहर आ जाता है, यस। तो वो ना आए इसलिए हम इन आर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। शायद किसी दिन नाचते हुए घर पहुंचे तो गुस्सा कम करेंगे, राइट। मम्मी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, या पापा ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, या बहन भाई ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, बट स्कूल में झगड़ा हुआ तो घर में बहन भाई की हो गई पिटाई या हो गया झगड़ा, यस।
तो वो सब प्रिवेंट करने के लिए हम इनमें से किसी एक मीडियम को यूज कर सकते हैं. कोपिंग स्किल्स. व्हाट इज कोपिंग स्किल्स? कोपिंग स्किल्स इज अबाउट, लेट्स से आज मैं बहुत सैड हूँ और मेरे साथ उस सैडनेस के बारे में बात करने के लिए कोई भी नहीं, राइट? मैं किसी के साथ वो बात नहीं कर सकती. तो जब मैं बात नहीं कर सकती तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं शायद उससे मैचिंग कोई गाना सुनूं, या एक पेपर को लेके फट. ये सब चीजें मेरे अंदर के गुस्से को, एंगर को, सैडनेस को रिस्पॉन्ड करने का एक अच्छा जरिया हो जाएगा, और शायद मुझे उसके बाद बेटर फील होगा. जैसे कभी कभी हम लोग, मैं तो कई बार यूज करती हूँ ये स्ट्रैटेजी. आज ना मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो पिलो लिया और भिशुम भिशुम भिशुम. यस, डज एनीबडी एल्स डू इट? I even sometimes kick on the road and walk home. तो मुझे पता होता है कि आज गुस्सा आ रहा है, तो पैर पटकते हुए अगर सीढ़ी पर चढ़े तो वो गुस्सा मेरा सारा सीढ़ी तक ही बीत जाता है, स्टेयर्स तक ही रह जाता है, और मैं घर में शांत घुसती हूँ. तो ये सब चीजों के लिए हम अपने प्रिवेंशन के लिए, हम अपने आप को बेटर करने के लिए हम सारी ये सब स्किल्स को यूज करते हैं, आर्ट बेस्ड इंटरवेंशंस को यूज करते हैं. डिस्ट्रेस टॉलरेंस. कई बार मुझे कोई बात पसंद नहीं है, या किसी का बात करना पसंद नहीं है, या शायद मेरे को किसी की टोन ही अच्छी नहीं लग रही है, राइट? या कोई बहुत ज्यादा बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं दूसरे आदमी को समझ ही नहीं पा रही. उस टाइम पर मुझे पेशेंटली वेट करना है, दूसरे के लिए इंतजार करना है. इन सब चीजों के टाइम पर भी हम अपनी क्रिएटिव आर्ट वेज को यूज कर सकते हैं, एंड हमारे न्यूरल पाथवेज को बढ़ाने के लिए. जो बच्चे तबला बजाते हैं, या जो बच्चे ड्रम किट बजाते हैं, या जो बच्चे गिटार बजाते हैं, या जो बच्चे हारमोनियम बजाते हैं, या जो बच्चे गाते हैं, उनके ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज हैं, वो जो बच्चे नहीं करते हैं उनसे ज्यादा है. शायद रीडिंग से हमारा वन साइड ऑफ द ब्रेन बहुत डेवलप होता है, बट म्यूजिक से, आर्ट स्किल से हमारा ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं और न्यूरल पाथवे बन जाते हैं. उसमें हम लॉजिक्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं. लेट्स से हम ग्रीन यूज कर रहे हैं, तो लाइट ग्रीन यूज करेंगे, डार्क ग्रीन यूज करेंगे, पेस्टल कलर्स यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करेंगे, राइट? ये जब चीजें हम यूज करेंगे, डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे, डिफरेंट म्यूजिक यूज करेंगे, अपने आप को स्टिमुलेशन के लिए, लेट्स गाएंगे तो जोर से गाएंगे या धीरे से गाएंगे. ये सब चीजें करने के लिए जो हमारा ब्रेन है उसमें रिस्पॉन्स एक्टिवेट करने के लिए न्यूरल पाथवेज बढ़ जाते हैं. सो क्रिएटिव आर्ट्स बहुत अच्छी चीज है. आपको कुछ ना कुछ अडेप्ट करना चाहिए जिससे आप अपना सेल्फ एक्सप्रेशन दे सके. ओके, अब मैं आपको एक टास्क देने वाली हूँ. लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई विल ओनली शेयर द ऑडियो. ओके, I will only share the audio of my computer. We are not able to hear you, ma'am. Yes, can you hear me now?
Yes. Okay, perfect. Let me share my computer sound. Okay, you're not able to see any screen right now? No. Okay, now I'm gonna play one music. Please tell me if you can hear that. Okay. Can you hear it? Yes. Yes. Okay. You have to tell me what sound is this. You have to write down in the chat box. Please write down in the chat box. What sound is this? What sound is this? You have. Oh, perfect. I started getting the responses as train. Perfect. Yes, that's a train horn sound. Now, without watching at what I am going to play, you still can hear and you can tell me, right? Okay, let's see if you can tell me the next sound. Tell me the next sound. Now, what you are hearing, please write it down in the chat box. Car sound, yes. Traffic sound. Horn in traffic, yes. Traffic sound. Okay. Can anybody hear people also? Human beings as well? Yes, perfect. And you can make out very easily what that sound is. Okay, next sound. Perfect. Yes, they are temple bells. Yes. Without watching, you still can make out what sound is it. So think how brilliant our brain could be that we can find out what exactly is happening. Let's go to the next sound and see if you can figure out what this is. Uh-huh. Yes. That's bird chirping. Okay. And if I ask you about bird chirping, what is your experience? Where do you hear bird chirping? In the farms, in the gardens, in the parks, or in the jungles? In morning, brilliant. Morning or zoo, yes. Early morning, jungle, park, yes. In gardens, every morning, fields, yes. Acha, now tell me, is it a pleasant sound or an unpleasant sound? It's a pleasant sound. And how was the traffic sound? Was it a pleasant sound for you or an unpleasant sound? Unpleasant, okay. How many of the people collapse on the road saying, oh no, there's so much of noise, please stop honking. Pa, pa, pa. Unpleasant traffic sound, yes. It sometimes hurt our ears as well, but we also honk when we go on the road. We say, beep, 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 get aside, we want to drive fast. Yes. So that's where we need to think about others as well. Okay, next sound. Let's see if you can find out what this is. Okay. Rain, water, waterfall. Radio. Okay, so that's how the difference is. This was audience shouting in the concert saying, yeah,
but everybody took it as a rain waterfall. Can anybody explain me why did you thought of rain and waterfall? Write it down in the chat box. Radio, yes. Waterfall. But why do you think it's a waterfall? क्योंकि इससे हाँ सिमिलर टू रेडियो क्योंकि इससे पहले जो आपने साउंड सुनी वो प्लेजेंट थी। तो जब हम लेट्स से एसी में बैठकर बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर तक तो ठंडा फील करते हैं ना, चाहे बहुत गर्मी क्यों ना हो, वो वैसे ही होता है। तो जो साउंड ने आपके ब्रेन में एक कवर क्रिएट किया था फ्रंटल लोब पर, यू वर लाइक फीलिंग चिड़िया की साउंड के बाद तो वाटरफॉल ही आएगा और आया लोगों का शाउट करना। Whereas अगर ये मैं शायद इसके बाद डालती रोड साउंड के बाद तो आप शायद इसको कुछ और बताते। So it is like that how you pursue according to your moods as well. Okay, let's see who can identify this sound. Yeah. Typing. Yes, everybody is writing typing because everybody types a lot. Yes. And that's where a liberation happens. Sometimes typing helps us to stimulate. मैंने लिख दिया, मेरा काम हो गया. Right? So that also helps our brain. Okay. Now I am going to give you another task. Everybody has to get one paper. एंड अगर आपके पास कलर्स हो तो कलर्स यूज कीजिए, पेन है तो पेन यूज कीजिए, पेंसिल है तो पेंसिल यूज कीजिए। ओके, आपके पास एक पेपर होना चाहिए और कलर्स हो तो बेस्ट रहेगा। देन वी कैन रियली सी हाउ यू ऑल think about different sounds. Yes, so try finding out whatever is in front of you. Use a paper, use a color, pen or pencils around you. And when you all are ready with paper and pencil, pen, colors, then give me a thumbs up. Okay, I can see one group being ready. We are all set. Are we all set with a pen, paper, and colors, and the paper and pencils? Anything that you can have. Oh, perfect. I can get a lot of thumbs up. Yes. Oh, perfect. I can see that. Great. Now, there is a different sort of music that you will hear. Okay? गाना बदलेगा तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको अपना पेपर का इधर डायरेक्शन चेंज करना है या फिर कलर चेंज करना है. ओके, by the end of 3-4 musics you have to I'll tell you when to stop. Okay, till that time you can do whatever you want to do on your paper. You can draw, you can scribble, just scribble भी कर सकते हैं. Okay, it's not that आपको perfect art piece बना के देना है मुझे, but आप कुछ भी कर सकते हैं उस पेपर पर. कुछ लिखना चाहें तो लिखें, कुछ सोचने में आए आपके, आप सोच रहे हो तो वो लिखें, जो आपका मन करे आपको उस पेपर पर करना है. म्यूजिक बदलेगा तो अगर आपके पास कलर्स हैं तो आप कलर चेंज करेंगे, अगर आप पेंसिल से कर रहे हैं तो आप अपने पेपर को मूव कर देंगे. ओके, अगर आपका पेपर ऐसे है और आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसको चेंज कर दें. ओके, रेडी? चलिए, लेट्स लिसन टू सम साउंड्स. You can do anything on your paper. You can color, you can paint, you can scribble. आप पेंसिल से, आपको अभी साउंड्स नहीं बताना है, आपको अभी अपने पेपर पर ड्रॉ करना है. आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं.
जो आपका मन चाहे। आपको एक पेपर लेना है, कुछ कलर्स लेने हैं या पेन लेना है, पेंसिल लेना है और स्क्रिबल करना है। Go on scribbling. Scribble on your paper, draw on your paper with your colors, with pens or pencils, while listening to the music. I can see that you can scribble on. अब सोचिए इस पीस में, इस पेपर में जो आपने किया है, उसको आप आगे और कैसे बढ़ाएंगे।
on scribbling. Paper change. वापस पेपर की डायरेक्शन मूव कीजिए और वापस स्क्रिबल कीजिए. नया म्यूजिक, नई स्क्रिबलिंग. Everything owes its existence solely and completely to sound. स्क्रिबलिंग चेंज. पेपर को वापस टर्न कीजिए और दोबारा स्क्रिबल कीजिए. आप सुन पा रहे हैं? अगर हाँ तो थम्स अप दीजिए मुझे. परफेक्ट. पेपर को वापस टर्न कीजिए और दोबारा स्क्रिबल कीजिए. ये कैसी आवाज है? क्या स्क्रिबल करेंगे ये सुनकर? तो सबने स्क्रिबल तो पक्का किया होगा. लेट्स सी आपका रिजल्ट्स कैसे कैसे आए. आपने क्या क्या स्क्रिबल किया.
Sachi, you're not audible. We cannot hear you. Now, can you hear me? Yes, you audible. Okay, perfect. Perfect. So you can share. Oh, beautiful. I can see a guitar. I can see and I can see a piano as well. I can see a tree with somebody doing it with the green. Beautiful. You can click pictures and you can even post it in the Zoom, chat box. And if that will take a lot of time, you all can click a group picture and post it in the Zoom chat box. Yes? Okay. Let me tell you one very important thing, which is a takeaway for this session. When you want to know about your own self and others, what you can do is you can check what is your listening volume. अगर आप normally एक क्वाइट रूम में बैठे हुए 50% वॉल्यूम से ऊपर सुन रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है. ओके, एंड यू नीड टू टॉक. ओह यस, आई कैन सी समबडी स्क्रिबल्ड रियली वेल. ओके, सो कुछ तो गड़बड़ है और आपको किसी से बात करनी चाहिए, राइट? सो योर लिसनिंग वॉल्यूम कैन ऑलवेज टेल यू कि अभी मेरा ब्रेन बहुत कंफ्यूज्ड है, या मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, या डू आई नीड टू टॉक टू समबडी. अगर आप बहुत लाउड वॉल्यूम सुन रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है. प्लेलिस्ट, जब आप अपनी प्लेलिस्ट देखते हैं, then you can even find out whether you are happy or you are sad. Or if you want to know about your friends now, okay, that how my friend is feeling right now, you can just go in their phone playlist and you can see how they feel. What songs are they listening? Are the song repetition? एक ही गाना बार 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 चल रहा है. That means we need to talk to our friend, or we need to talk to our own selves. We need to talk to somebody telling कि मैं ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ. हमें म्यूजिक गैदरिंग्स या कॉन्सर्ट्स में जाना चाहिए. हम गुरुद्वारे जाते हैं, वहां हम म्यूजिक सुनते हैं. हम टेम्पल्स में जाते हैं, वहां हम म्यूजिक सुनते हैं. Wherever we go, or wherever there are concerts happening, where there is a large group of music people, we should get involved. वो क्यों important होता है? क्योंकि जब हम recorded music सुनते हैं all the time, that simply means हमारा ब्रेन कहता है सिर्फ अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनो, किसी से गड़बड़ हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. Whereas जब लाइव म्यूजिक चलता है तो कभी कुछ गड़बड़ हो सकता है, शायद ताल छूट जाए, शायद कोई नोट छूट जाए, शायद खांसी आ जाए, शायद हो जाए. तो ब्रेन को एकदम से स्टॉप गैप लगता है और ब्रेन सोचता है ये क्या हुआ. So at that point of time, concerts helps our brain to be okay with some gadbad as well, some faults as well. So it is very important to go in a concert. Then there is a very, very important thing that is about playing an instrument. हम सबको एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए. लेट्स से मुझे बहुत वियर्ड फील होता है, या मुझे किसी से बात नहीं करनी होती, पर मैं बहुत बड़े ग्रुप में बैठी हूँ तो मैं मेरा गिटार लेके बैठ जाती हूँ, सो दैट मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत फिजिकली भी पास में है और इमोशनली भी मुझे जो बजाना है तो मैं उसको प्ले कर सकती हूँ. सो अगर आप भी एक इंस्ट्रूमेंट पिक करेंगे, वो आपके ब्रेन में स्टिमुलेशन बढ़ाएगा, वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा. जब आपको एंजाइटी होगी या एंशियसनेस होगी, आप अपने इंस्ट्रूमेंट के पास वापस लौट सकते हैं. And the last most important thing is sharing circle. Now, what is sharing circle? हम अंताक्षरी खेलते हैं, हम एक साथ गाना गाते हैं, कहीं बस में जाते हैं तो बहुत जोर से गाना गाते हैं. These are all called as sharing circles, and it is very very important. या शायद शब्द एक साथ गाते हैं, मॉर्निंग में प्रेयर एक साथ करते हैं.
ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमको एक दूसरे के बारे में जानने के लिए. So it is good and important to do or have a sharing circle. So I would say that's it from my side. And anybody, if ever want to be in touch or want to ask their questions, if they have any questions, you can ask here. And if you do not have time or want to ask it privately, you can surely reach out to me. I can see a lot of artwork coming in the okay. So I have stopped sharing my screen. I hope so. Yes. And you all, somebody else has started sharing. So can you stop sharing, please? Host is not allowing You- participants to unmute. Huh? Host is not. Beautiful. That's it. And thank you from my side. Yes, I can see a lot of scribbling happening. Well done. Yes, and that's how we scribble. You all can sit together Hello. and do the scribbling. Hello, Astha. Astha Luthra. Acha, madam, this is a wonderful, you see, display of music therapy. The way you have kept the students engaged and happy at the same time, wonderful. Now, you see, I would like to draw the attention of the teachers and the principal and the students to this fact. See, this MS Luthra, she had undergone a great stress. A few days back only, she lost her father, and the way she has come back to the normal, you see, position, and she has conducted this session. We should all learn. This is the core, you see, feature of mental health. The resilience shown by Ms. Luthra is wonderful. I mean, I think I myself have learned a lot from this session, not more from this session, but more from your personality, the way you have come out of the setback, which is really a great setback for a daughter. I'm greatly impressed, and I am profoundly thankful to you for all this you have done. Thank you very much again. Thank you. Thank you, sir. Wonderful. Wonderful. Dear Astha ji, we are truly, truly thankful for your time, and we are truly impressed by your passion, by your expertise in the field, and we are sure that all of us have learned a lot. You are a true inspiration, and we'll cherish this forever. Thank you so much. Thank you so much. It was my pleasure to be here with all of you. It's our pleasure to have you with us. Now, if there are any questions, you may, as I have mentioned earlier as well, if there are any questions, you may mention in the chat box. And मैम ने आप सबके साथ अपना शेयर भी करा है. अगर आपको फिर भी कोई questions है, आप उनसे reach out भी कर सकते हैं. Now, this was it for Ms. Astha ji's session. Now we'll move on to Dr. Pankaj Mala ji, जो कि हमारे बीच में है. नेक्स्ट सेशन हमारा वो टेकअप करेंगे. She is a truly inspirational, distinguished personality. उनकी जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है. उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है. मतलब she is wearing all the hats on her head that we जितनी तारीफें करें हमारे लिए वो कम है. She has published several papers, several books. She has great teaching experience. She has held several workshops, seminars. So the list goes on and on. बाकी आप खुद बात करेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा. Let's all welcome Dr. Pankaj Mala ji to start her session with us. Dr. Pankaj Mala ji, can we please have you and begin your session? Hello. Hello. Can you hear me?
Yes, ma'am, we can absolutely hear you. Welcome. We welcome you here. And we are looking forward to your session. Oh, thank you. Namaskar. I'm really grateful and feel honored to be invited to this session. And I personally thank to the Pitaji we call Dr. Rajendra Singh ji, who has just not requested me, he just, I take it, ordered me to be present in the seminar. And this workshop is on the mental health, which is the most favorite topic right from the dawn of the era to the Indian culture. So Thank हम you. लोग शुरू से ही इस चीज के लिए बहुत ही अवेयर रहे हैं कि हम 3 तरह के ताप गिने जाते हैं। एक दैहिक होता है, एक दैविक होता है और एक आध्यात्मिक होता है। तो शरीर के साथ जो मिला रहता है वो तो कहलाता है दैहिक। उसका तो अगर कोई हमें बीमारी हो गई तो उसका उपचार हो जाएगा दवाई से, मेडिसिन वी कैन टेक एंड वी आर लाइक ओके। बट अगर कोई दैविक है, दैविक मीन्स द नेचुरल क्लैमिटी है, कोई भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, उसके इलाज भी मनुष्य ने बहुत सारे खोज लिए हैं, वो भी हम। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियंस एंड व्हाट वी आर नोन फॉर, दैट इज द मेंटल, आध्यात्मिक, कि हम सब कुछ करते हुए, सभी परिस्थितियों में रहते हुए, सभी तरह के आयु का भोग करते हुए प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। हाउ वी कैन बी इन पीस, हाउ वी कैन लिव इन मेंटल पीस, एंड हाउ वी कैन spread this message of mental peace. So this is the most important. I really appreciate the effort time to time is taken by the Akal Academy, Baru Sahab, and all the unit, not only Akal Academy, it's Eternal University, it's a nursing home. So many units they are running and under the one, roof. So I appreciate it and I feel honored to be here. So may I have a permission to start? हमारे पास 2-3 चीजें हैं। एक तो संगीत, दूसरा मेंटल जिसको हम कहते हैं मन, और तीसरा है उसकी स्वस्थता। तो संगीत क्या है और संगीत हमें कैसे स्वस्थ बना सकता है और संगीत का क्या प्रयोग करके हम अपने आप को प्रसन्न महसूस कर सकते हैं, ये हमारा विषय है। और आज ये समस्या हिंदुस्तान की या एक परिवार की या एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये समस्या यूनिवर्सल बन चुकी है। इसलिए इन विषयों पर विचार कराना बहुत अभी आवश्यक भी है। एंड नाउ वी हैव म्यूजिक थेरेपी सेंटर्स एंड थेरेपेटिक द सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। शुरू हुआ था, पहले मैं ये बात करूंगी कि कैसे हम म्यूजिक थेरेपी में आने लगे। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है। उस समय जब इतनी हत्याएं हुई, इतना स्लैटर, एक तरह का बहुत ही नुकसान हुआ ह्यूमैनिटी का, तो जो लोग हॉस्पिटल में थे उस समय उन्होंने क्या किया, उपचार किया। तो जब हड्डी टूट गई है या कोई और कष्ट है उसका तो सर्जरी होगी। लेकिन द डॉक्टर वाज अ वायलिनिस्ट, द डॉक्टर ही न्यू द सर्जन वाज द म्यूजिशियन आल्सो। So he thought, why don't I use music when the patients, they are suffering from the pain? So he invited all the violinists in the German and the America. तो ये सब जगह प्रयोग इकट्ठा हुआ। It was in early 1914 का युद्ध था, 1919 का दूसरा महायुद्ध था, the second world war. Then after that it has happened. तो उसने क्या किया, he invited all the violinists to come and play the violin to the patients who are suffering from all injuries and the bone breakage or fractures or so. So what he realized, it was very useful. The people, they though it has not healed, अब हड्डी तो नहीं जुड़ गई म्यूजिक से, but
बट ही रियलाइज कि लोगों को पेन का जो फीलिंग थी वो म्यूजिक के कारण डाइवर्ट हो गई, एंड दे स्टार्टेड द डिग्री ऑफ द रिड्यूस्ड पेन. सो नाउ दिस हैज स्टार्टेड. इस तरह से ये शुरू हो गया, और धीरे धीरे एम्टा, अमेरिकन म्यूजिक थेरेपिस्ट एसोसिएशन, और नेशनल म्यूजिक थेरेपिस्ट एसोसिएशन, सो इस तरह की बहुत सारी थेरेपेटिक इंस्टीट्यूशंस बने. लेकिन जब मैं बात करने वाली हूँ वो हम कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ये तो था कि म्यूजिक थेरेपी नाम से एक ब्रांच ही शुरू हो गई, और हम सब जगह सेंटर बनाने लगे, छोटे छोटे कैप्सूल बनाए कि किस तरह का म्यूजिक किस तरह के पेशेंट के लिए सुनाया जाए, और उसका सिलेक्शन, जैसे बच्चा है तो लालबाईस का कलेक्शन शुरू किया, लोरियां इकट्ठी करी, और जैसे ही कुछ बड़े एडोलसेंट एज के हैं तो उनके लिए, एज माय प्रीवियस स्पीकर हैज टोल्ड, कि वो छोटे छोटे क्लिपिंग्स जो हैं वो इकट्ठे करके उनको सुनाना शुरू किया. और इसमें दो चीजें थी, एक तो साउंड थेरेपी है, व्हाट वी कॉल इट स्वर, दूसरी है रिद्म, तो जिसको हम कहते हैं लय. तो म्यूजिक में दो ही चीजें मेन होती हैं, एक स्वर और एक लय, द रिद्म. तो इन दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो इनका असर एक अपनी तरह का होता है. समटाइम्स यू डोंट फील लाइक प्लेइंग रिदमिक इंस्ट्रूमेंट, बट ओनली द स्वर पार्ट ऑफ इट दैट सूट्स यू. आलाप है, जैसे हम सितार पे करते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट पे करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. इसी तरह से कभी क्या होता है कि इतना रिजॉयस होते हैं हम लोग, इतनी खुशी होती है, तो क्या करते हैं, ड्रम बीट करते हैं. तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, स्पेशली द प्रकशन इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कभी निराश नहीं करता. प्रकशन इंस्ट्रूमेंट जो है हमेशा आपको क्या करते हैं, दे आर फुल ऑफ विगर, दे आर फुल ऑफ जॉय. तो जब भी कोई खुशी ज्यादा मनानी है या किसी को डराना है या युद्ध में विजय प्राप्त करनी, तो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाले प्रकशन इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं. अब जब हम विचार करते हैं कि हमारे लोगों ने इसको शास्त्रों ने कैसे समझा और हम इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, तो पहले जानना होगा कि म्यूजिक के जो कंपोनेंट मैंने कहे, एक तो है स्वर, दूसरा है ताल या लय, रिद्म. अब इनको कैसे समझा, तो शास्त्र में आता है, चैतन्यम सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना नादानंदम तदानंदम अद्वितीयम अहम उपास्महे. तो ये क्या है म्यूजिक? What is the music? Now the question is, and how we can attain it and how we can practice it. So the two things. वो कहते हैं चैतन्य, ये क्या चीज है? It is, ये चैतन्य रूप है, ये मृत नहीं है, ये सजग रूप है, ये प्राणवान है. और सर्वभूतानाम, अगर देखो कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है, तो सर्वभूतानाम ये सब प्राणियों में सब जगह पे व्याप्त हुआ है. और ऐसा व्याप्त होने के बाद क्या है कि नादानंदम, तो ये जो नाद है, इसको साउंड को क्या कहा है, इसको नाद कहा है. ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है संगीत के लिए. तो इसी नाद से गीत बनता है, क्योंकि ये नाद जो है ये क्या है, नादानंदम. ये नाद जो है अल्टीमेटली ये आनंद देने वाला है. तो इसकी नेचर ही क्या है, आनंद प्रदान करना. नादानंदम और तदानंदम, और उसका आनंद कैसा है, सिर्फ मैं ही महसूस नहीं करता, लेकिन जहां जहां इसको मैनिफेस्टेड रूप में अगर हम इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो जो सुनता है उसको भी इफेक्ट करता है. तो नादानंदम, उसका आनंद जो है, तदानंदम, और उससे निकला हुआ आनंद. पहले तो ये स्वयं आनंदमय है, लेकिन फिर इसके बाद जो इसकी प्रैक्टिस करता है और जो इसको एक्सप्रेस करता है, उन सब का जो है वो क्या होता है कि ये इस कारण से क्या होता है, अद्वितीयम, दिस इज यूनिक. इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है. दो देयर आर सो मेनी आर्ट्स, पेंटिंग भी है, स्कल्पचर भी है, सब आर्ट्स हैं, लेकिन इसका जो आनंद है अद्वितीयम. अद्वितीयम, देयर इज नो सेकेंडरी टू इट, नो सब्स्टिट्यूट टू इट. तो ये जो है ये यूनिक है.
और इसीलिए हम इसकी क्या करते हैं, इसकी उपासना करते हैं। वी वर्शिप इट एंड इट गिव्स अस द प्लेजर। तो ये म्यूजिक इनसाइट हमारी इंडियन फिलॉसफी कहती है। अब वो कहते हैं कि ये कैसा है, तो कहते हैं इसकी तो उपासना हमने थोड़ी की है, ये हमसे पहले पहले जब से सृष्टि बनी है, जिनको हमने देव कहा, जिसको हमने पंच महाभूत कहा या एलिमेंट्स कहा, 5 एलिमेंट्स कहा, या जिसको हमने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे तत्व जिसको हमने कहे, उस सब में यही तो है। अगर ये नहीं है कहीं भी, तो वो आत्मा क्या हो जाती है, वो मृत हो जाती है, वो जीवित नहीं होती। तो तब वो फिर उसकी तारीफ करता है, कहते तस्य गीतस्य महात्म्यम के प्रशंसितुं उच्यते। तो इस गीत की मैं क्या प्रशंसा करूं, इसको कौन प्रशंसा कर सकता है? क्यों? क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षानाम इदम एव एक साधनम। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो अर्थ हो, कोई प्रोफेशन हो, चाहे काम, इच्छाओं की पूर्ति करनी हो, और चाहे अल्टीमेटली जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष जीवन रहते हुए भी होता है, मोक्ष मृत्यु उपरांत भी होता है, दोनों तरह का मोक्ष होता है। मोक्ष जो है एक्चुअली एक आनंद की अवस्था है, जिसमें आपको रोग, शोक, द्वेष, किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं रह जाती, वहां वो जगह मोक्ष कहलाती है। तो वो जीवन मुक्त भी है और जीवन के उपरांत भी। जीवन के उपरांत तो हमने देखा नहीं, लेकिन जीवन में रहते हुए जो हम महसूस करते हैं संगीत में, हम उसकी बात करते हैं। अब उसके लिए फिर उदाहरण देते हैं। उसके लिए उदाहरण जो है वो हमारे शास्त्र में दिए गए हैं, बहुत अच्छे से उदाहरण वो हैं हमारे पास। तो उसमें कहते हैं कि गीतेन प्रियते देवा सर्वज्ञ पार्वती पति गोपीपति अनंतोरपि वंशध्वनि वशम गता। तो ये हम नहीं, ये जो गीत से हैं, ये सारे देवता भी प्रसन्न हुए हैं। चाहे वो शिव है, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे वो विष्णु है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अगर हम संगीत की दृष्टि से देखें, तो ये संगीत की तीनों शक्तियां हैं। एक है क्रिएटर, एक है उसको जो मेंटेन करता है, विष्णु इज टू मेंटेन, और तीसरा होता है शिव जो उसका कल्याण करता है। तो ये तीनों शक्तियां जो हैं, ये किसकी उपासना करने से मिलती हैं? ये गीत की उपासना से करने से बनती हैं। तो इनको पर्सोनिफाई किया हुआ है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह से। लेकिन वैसे ये दीज आर द 3 स्टेजेस, कि पहली में क्रिएट होता है, फिर क्रिएटेड चीज का प्रोटेक्शन होता है, फिर प्रोटेक्टेड चीज में जो है वो आनंद होता है, वो कल्याण की होती है। सिर्फ प्रोटेक्ट करके हमने पैसा कमाया, कमा करके उसको लॉकर में रख दिया, तो इट्स ऑफ नो यूज। ऐसा प्रोटेक्ट करना किसी काम का नहीं है। लेकिन जब हम प्रोटेक्ट करके उसको समाज के कल्याण के लिए लगाते हैं, तो वो उसका असली फल मिलता है। तो म्यूजिक में ये तीनों चीजें हैं, हम क्रिएट भी करते हैं, हम उसको साधना से उसको प्रिजर्व भी करते हैं, और फिर उसको मानव कल्याण के लिए, सबके भले के लिए, सबके आनंद के लिए उसको क्या करते हैं, हम खर्च भी करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो कहते हैं कि फिर कैसे शेयर होता है? कहते हैं कि साम गीति रतो ब्रह्मा। देखो, साम गान गाते रहते हैं पुराने ऋषि लोग, और वीणा सकता सरस्वती। अगर सरस्वती को देखो तो हमेशा हाथ में वो वीणा ही लिए रहती है। और फिर और भी 2 लोगों का क्या कहो, जितने भी किन्नर हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, सब लोग किसी ना किसी म्यूजिक फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहते ये तो हमने उनकी बात कही, जो एक तरह से जिनको हम सुपर नेचुरल पावर कह सकते हैं, या अपने से सुपर पावर कहते हैं। कहते हैं हम धरातल पर आकर के देखें तो देखो म्यूजिक का इफेक्ट कहाँ आता है। तो कहते हैं अज्ञात विषया स्वादो बाला पर्यंकागता। छोटा बालक पैदा हुआ, अब उसको किसी रस का पता नहीं है, उसको उसकी इंद्री और कोई काम नहीं करती है, लेकिन वो क्या करता है, वो रोता है दूध के लिए। लेकिन जब वो रोता है, तो अब उसको जब गीत सुना देते हैं, जब वो गीत सुन लेता है, तो वो क्या हो जाता है,
वो हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और मगन होकर के सो जाता है। अब इसको कोई ज्ञान नहीं है, ना संगीत का ना कुछ, तो इसको किस बात का ज्ञान है? उस ललाबाई का ज्ञान है जो लोरियां जो माँ देती है। तो ये लोरी की फॉर्म में जो वो संगीत सुनता है, वो उससे क्या, उसको और वैसे कोई अकल नहीं है, कोई तहजीब नहीं, कुछ पता नहीं संगीत क्या है, लय क्या है, ताल क्या है, लेकिन लोरी सुनते ही वो क्या हो जाता है, वो मगन हो जाता है और सो जाता है। तो ये तो मनुष्य की बात है। वो कहते हैं मनुष्य क्यों, आप दूसरों की बात करो कि वन में चरता हुआ जो पशु है, वन में, कहते हैं वने चर तृणाहार, वन में चरता हुआ पशु जो कि तृण खाता है, जो घास फूस खाता है, ऐसा हिरण, ऐसा हिरण का बच्चा तो क्या करता है, जब बहेलिया उसको पकड़ता है, जब शिकारी उसको, हंटर उसको हॉन्ट करता है, तो वो क्या करता है, उस समय वो साउंड सुनाता है, वो बांसुरी बजाता है या कोई संगीत की ध्वनि सुनाता है। तो संगीत की ध्वनि सुनते ही ये हिरण और हिरण का बच्चा, ये सारा परिवार जो है वो खिंचा चला आता है। कहते हैं कि वो संगीत के इतना वश में हो जाते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता उसका जीवन कहाँ है, वो अगले ही क्षण में मर जाएगा, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो वो क्या हो जाता है, वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से संगीत का प्रभाव देवता से लेकर के, यूनिवर्स की क्रिएशन से लेकर के, अपने धरातल जमीन तक, मनुष्यों के ऊपर, छोटे बालकों के ऊपर, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो अब कहते हैं कि ये तो चलो वो पशु है जिसके कान हैं। अब जिसके कान नहीं भी हैं, जिसके कान नहीं है, सांप के कान नहीं होते, लेकिन वो भी जब नाद उसको सुनाई देता है, जब उसको बीन की आवाज सुनाई देता है, सपेरा जब बीन बजाता है, तो अपना जीवन का वो मोह त्याग करके वो उसके पीछे चला आता है। तो इसमें आकर्षण किस चीज का है? आकर्षण संगीत का है। इसका मतलब संगीत में ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में जीवित रहने से भी ऊपर है, जो हमें एलिवेट कर देती है कि जिस मेंटल स्टेट में हम रहते हैं वो उससे हमें ऊपर उठा देती है और एक ऐसी जगह पे ले आती है जहां पे हमें आनंद ही आनंद दिखता है। अब दूसरी चीज कि इसका हम प्रैक्टिस कैसे करें, ये तो बात हो गई संगीत की खासियत की, लेकिन इसको मैनिफेस्टेड रूप में कैसे जाना जाएगा? इसको मैनिफेस्टेड रूप में स्वरों के रूप में जाना जाता है। वाणी में भी आता है, नाद राग सब सच है, कि सबसे ज्यादा सत्य जो संगीत में है वो क्या है? वो साउंड है, वो नाद ही है। और वो नाद कहाँ से पैदा होगा? वो नाद शरीर में पैदा होगा। जब तक तो सुनाई नहीं देगा तो वो अनहत है, लेकिन जब वो सुनाई देगा तो उसमें दो चीजें जुड़ेंगी, एक फोर्स और एक एयर। तो जब प्राण और अग्नि दोनों चीजें मिल जाएंगी शरीर में, तो उसमें एक उद्वेलन होगा, उसमें एक हलचल होगी, उसमें एक हरकत होगी। तो वो हरकत हो करके वो शरीर में नाभि प्रदेश में न रह करके वो ऊपर को हम प्रयत्न करके उसको लाते हैं। तो जब हम ऊपर को प्रयत्न करते लाते हैं तो फिर हम उसको सुनेंगे। सुनेंगे कब? जब मुंह से उच्चारण करेंगे। और जब तक मुंह से उच्चारण नहीं करा तब तक वो सुना नहीं जाएगा। सुनने के लिए हमें उच्चारण करना पड़ेगा। तो जब उच्चारण करेंगे, वो जैसे ही उच्चारण किया तो वो बन जाएगा स्वर। तो स्वर का मतलब है स्वयं राजते, वो अपने आप आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, मुखरित हो जाएगा, अपने आप आकर के जैसे हमारे प्रकट हो जाएगा, ऐसी उसकी स्थिति हो जाएगी। तो उस स्वर को प्रकट करना और उस स्वर को प्रकट होने को पहचानना, ये दो चीजें हैं। तो जब हम स्वर को प्रकट करेंगे और स्वर को पहचानेंगे तो ये सबसे आसान भी है और ये सबसे कठिन भी है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे बैठे हैं सब यहाँ, तो प्रारंभिक अवस्था में हम क्या करते हैं, हम बहुत साधारण धुनें लेते हैं। और जब हम आगे आगे एडवांस स्टेज पे जाते हैं तो वहां उन धुनों को हम छोड़ करके हम स्वर की साधना में आगे बढ़ने लगते हैं। और ये साधना इतनी बढ़ जाती है कि चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई प्रकशन इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई गाने की कोई भी विधा हो,
तो हमें सब में उतना ही रस आने, फिर हम ये नहीं कहते मुझे भजन नहीं अच्छा लगा, या मुझे गजल नहीं अच्छी लगी, या मुझे फोक नहीं। जब म्यूजिक का आनंद लेने लगते हैं तो हम देखते हैं उसमें स्वर कहाँ है, उसमें ट्यून कैसी है, उसमें रिद्म कैसी है। तो ये क्या बन जाता है, ये सारी सीमाएं, कोई भी प्रांत की, देश की, धर्म की और भाषा की, सब सीमाएं लांग के ये ऊपर आ जाता है। यही अल्टीमेट ब्लिस है, इसका यही खासियत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम साधारण स्वरों में कैसे हम शुरू करते हैं। मैंने कोई ऐसी पीपीटी नहीं बनाई, क्योंकि मैं लाइव आर्ट में बिलीव करती हूँ। मेरे पास हारमोनियम है, ये मैंने शुद्ध स्वरों की एक सरगम छेड़ी। तो इसको गाने में कैसे कहेंगे, सा रे गा पा रे सा पा मा गा रे। ये बेसिक स्वरावली है हमारी, चाहे वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक हो, चाहे साउथ इंडियन म्यूजिक हो, चाहे वेस्टर्न म्यूजिक हो, यही स्वर सातों हम इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों को सिखाना है, बच्चों को हमने सिखाना है, और इस तरह से अगर सारे गामा सा सा रे रे इस तरह के अलंकार कहेंगे तो छोटा बच्चा अगले दिन क्लास में ही नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल्स तैयार करते हैं, जिसमें वो मस्ती में गाता भी है और मस्ती में उसको याद भी करता है। जैसे एक चीज मैं बताऊंगी, सा सिखाया, सा की जगह बता दी हमने, और क्या कहा, सा साथी गगन तले रे, रेशम सी धूप छाई गाने लगा जमाना, मन माधुरी समा। क्या कहा हमने, उसमें कविता जोड़ दी। बात तो स्वरों की ही थी, लेकिन जोड़ा हमने क्या, साथी गगन तले रे। तो क्या हुआ, रेशम सी धूप छाई, सवेरे का वक्त है, तो सा पे हमने साथी गगन तले रे कहा, और रे से कहा रेशम सी धूप छाई, और गा से कहा गाने लगा जमाना, और म से कहा मन माधुरी समाई। तो हमारा पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है इन्हीं चार स्वरों में आ गया। तो आगे बाद में जोड़ दिया सरे ग म पा 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 पा, तो बच्चा पंचम तक आराम से उसको सीख लेता है, और हंसते खेलते एक के हाथ में एक डालते हुए बच्चे झूमते भी हैं और बच्चे गाते भी हैं। तो इस तरह से ये एज है एक, जिसको हम कहते हैं नर्सरी स्टेज है। लेकिन जैसे जैसे स्टेज एडवांस होती है तो हमारे टेस्ट भी अलग होते जाते हैं, फिर हम स्वर के साथ सिलेक्शन जो है वो भी अलग होता जाता है। तो वो किस तरह का स्वर का सिलेक्शन करना है, वो किस तरह के कंटेंट का सिलेक्शन करना है। अब जैसे एक गीत है, हम थोड़े बच्चों के लिए करते हैं, सीता में छिपी है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, हम उसको क्या दे रहे हैं, संगीत भी दे रहे हैं, और संगीत के माध्यम से मॉरल वैल्यूज भी दे रहे हैं। नहीं तो बच्चे आज के, हमें पेरेंट्स ही नहीं पसंद, आप जाओ हम फ्रेंड्स में ठीक है, आप हटो हम मोबाइल में ठीक है। लेकिन बाद में बच्चे कहाँ क्या क्या गेम खेलते हुए, मुझे तो उन गेम्स के नाम भी नहीं आते, बच्चे कहाँ से कहाँ क्राइम में चले जाते हैं। तो मेंटली क्या हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, और मेंटली वो जो एक असहनीय स्थिति है, यहाँ तक कि आत्मघात तक, सुसाइड तक बच्चे चले जाते हैं। तो इस तरह के गीत हम जब संगीत में देते हैं, वी हैव अ थॉट, वी हैव अ कंटेंट
एंड वी हैव अ म्यूजिक टू। तो हमारा म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक अकेला सारेगामा नहीं है, उसमें हम साथ में कुछ कुछ कंटेंट डालते हैं। तो इसमें मैंने क्या कंटेंट डाला बच्चों के लिए, ये कुछ 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे हैं उनके लिए ये है। तो उसमें क्या कहेंगे हम, पिता माता की भक्ति में छिपी ईश्वर की भक्ति है। अब पिता है रूप ईश्वर का, तो माता लक्ष्मी शक्ति है। पिता माता की भक्ति में छिपी ईश्वर की भक्ति है। और फिर इसी में आगे अंतरा क्या है, पिता माता के चरणों में तो गंगा जल की महिमा है, और इनके चरणों में सबकी तीर्थों की दुनिया बसती है, कि सारे तीर्थ जो हैं वो माँ बाप के चरणों में ही है। सो इस तरह का हम एक मैसेज देते हैं, म्यूजिक के माध्यम से देते हैं। इसमें हमारे पास स्वर भी है, राग भी है, लय भी है और ताल भी है। जब हम इन सारों को यूनाइट करके प्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों को जरूर नहीं कहते कि पहले आप गाइए या आप बजाइए, हम अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चे जो हैं वो अपने आप उसमें आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हार्मोनिक म्यूजिक है उसमें बहुत जल्दी छोटी छोटी ट्यून इफेक्ट करती हैं। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इसका असर देर का होता है, और ये आता भी कई तरीकों से है। ये इसके आने का एक ही तरीका नहीं है। छोटे छोटे फोक सॉन्ग्स हैं हमारे पास, छोटी छोटी लोरियां हैं हमारे पास, छोटे छोटे शब्द हैं हमारे पास, छोटे छोटे भजन हैं हमारे पास। हम उन्हीं रागों में, और कुछ राग ऐसे हैं जिनमें शुद्ध स्वर हैं, कुछ राग ऐसे हैं जिनमें फ्लैट नोट्स हैं। तो ये सारे जो हैं ये डिफरेंट मूड्स को बताते हैं, और जैसा मूड होता है वैसा हम राग का सिलेक्शन कर लेते हैं। और वैसे ही राग का सिलेक्शन करते हुए जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अभी उतने साधन नहीं है मेरे पास, इंस्ट्रूमेंट भी मैंने हारमोनियम ही रखा है अपने पास। सितार मेरा विषय है कि सितार में उन मेलोडीज को बजा के सुनाया जाए, तबला उसके सामने हो, देन यू कैन सी द इफेक्ट, जो हमारा जो फिजिकल सामने का इफेक्ट आता है। तो इस तरह का म्यूजिक हम केवल कोट कर सकते हैं, कि जैसे पंडित रविशंकर जी के संगीत को सुने, या अमजद अली खां साहब के सरोद को सुने, या वीणा को सुने, या शाहिद प्रवेश जी का सितार सुने, या फिर शिव कुमार शर्मा जी का संतूर सुने। तो ये छोटे 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 पीसेस जो हैं ये इस तरह से हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। अब मुझे किसी ने नहीं सिखाया, सपोज मेरे पास कोई टीचर भी नहीं है, मैं म्यूजिक की प्रैक्टिस में आना चाहता हूं। अब मुझे प्रैक्टिस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे पास कोई साधन नहीं है, आई डोंट हैव एनी टीचर, आई डोंट हैव एनी द प्रैक्टिस प्रोग्राम। अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो ऐसे में मेरे लिए क्या दिशा है? द क्वेश्चन इज, ऐसे में मैं कैसे अपनी मानसिकता को उस म्यूजिक के साथ जोड़ करके प्रसन्न रह सकता हूँ? हाउ आई कैन बी डेविएटेड फ्रॉम द ऑल मिजरीज, sorrows, depression and anxiety, like all these mental disorders, all the or the indifferent behaviors जो इन disorders की वजह से आते हैं। तो हम जब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम सा कहते हैं, सा कहना है सबसे पहले, रे कहना है सबसे पहले, लेकिन इससे पहले भी एक ध्वनि है, उसको हम कहते हैं एक ओंकार। एक ओम की ध्वनि जो है वो इन सारी ध्वनियों को रेगुलेट कर देती है। उसके लिए करना क्या है? हमें कहीं भी बैठ करके संगीत की साधना नहीं होती, इसके लिए हमें लैब चाहिए। लैब मीन्स कोई एक अलग सा साफ सुथरी जगह चाहिए। अगर वो प्राकृतिक वातावरण में है तो और अच्छा, नहीं है तो बंद कमरा ठीक है, कमरे में भी ठीक है। लेकिन उसमें करना क्या होगा, उसमें एक आसन लगाना है, डायरेक्ट जमीन पे नहीं बैठना। चाहे तो एक पटरा या कोई चौकी होनी चाहिए, या फिर उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछा होना चाहिए, दैट शुड बी आसन। तो एक पहले बैठने के लिए एक आसन होना चाहिए, देन वी शुड हैव द एटमॉस्फियर। उसका माइंड पे एकदम असर होना शुरू हो जाएगा।
नहीं तो हम कहीं भी चलते फिरते कहीं सारे गामा करने शुरू हो जाएंगे, उसका असर नहीं होगा। उस लैब में हमें आना पड़ेगा, उस अनुशासन में आना पड़ेगा। तो उस अनुशासन में आने के लिए क्या करना है? एक तो मैंने बताया कि एक जगह, सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस, और अगर वो नेचुरल कहीं खुली जगह है, बहुत अच्छी बात है। नहीं खुली जगह मिलती, जो एकांत सी शांत सी जगह मिलती है, वो हमें सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्या करना है कि एक टाइम निर्धारित करना है। देयर शुड बी वन टाइम फॉर प्रैक्टिस। एक समय होना चाहिए। सवेरे का हो तो बहुत उत्तम, नहीं सवेरे का मिलता तो दोपहर का, शाम का। दोपहर आमतौर पे ज्यादा सुटेबल नहीं होती। दो ही मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहे जाते हैं ज्ञान के लिए, एक सवेरे का और एक शाम का। एक सवेरे 3:30 से 7 बजे तक, एक शाम को 3:30 से 7 बजे तक का समय है। इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे आधा घंटा, जितना भी टाइम अपने को लगता है, उस जगह पे जा करके नित्य प्रति बैठना। क्योंकि म्यूजिक जो है, इसकी थेरेपी तभी काम करती है जब ये डोज हमें रोज मिलती है। ये नहीं होता आज म्यूजिक सुन लिया तो वो बरसों तक हमारा उसका आनंद बना रहेगा और बरसों तक हम उसमें आनंदित होते रहेंगे। नहीं, ये आनंद कैसा है, इसको कहते हैं रस का पाक होता है। इस आनंद का रोज रोज पाक, रोज रोज पकता है। रोज रोज कैसे पकता है? कहते हैं ओदन पचतीवत। जैसे भात पकाया जाता है, जैसे चावल पकाया जाता है कि रोज पानी डाले, रोज चावल डाले, रोज उसमें नमक मसाले जो भी डलने के बाद, और एक उसको प्रोसेसिंग का टाइम चाहिए जिसमें आंच लगा करके जो करते हैं, तो वो उतना जो उसको हीट से जितना प्रोसेसिंग का टाइम जो चाहिए, उसके बाद वो पकता है। अगर सारा कुछ मिला करके अगर उसको हीट भी उतनी एकदम दिया, प्रोसेसिंग का टाइम नहीं दिया जाए, तो वो नष्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो पकेगा नहीं। तो इसी तरह म्यूजिक का जो मन पे जो इफेक्ट होता है, एक तो वो नित्य प्रति के अभ्यास से होता है। अभ्यास दोनों तरह का है, शुरू शुरू में सुनने का और बाद में करने का भी। जब आप सुनने लगो फिर वो करने भी लगता है। मत सोचो कि हम कोई फिल्मी गाना सुन रहे हैं या हम कोई शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं या किसी और देश का जैज या सिम्फनी कुछ भी सुन रहे हैं, मत सोचो। आप सब तरह का सुनिए। सब तरह का सुनने के बाद अपने आप, आपके मन के साथ जिसका भी रिश्ता होना होगा, वो अपने आप धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा। तब आप अपने को पहचानोगे कि मुझे किस तरह का म्यूजिक जो है वो सूद करता है। क्योंकि दवाई जो है वो डॉक्टर मरीज का लक्षण देख करके देता है, लेकिन म्यूजिक जो है वो अपना लक्षण देख करके खुद स्वयं ग्रहण करता है। तो इसमें देने वाला जो है उसका रोल एक हद तक है, उसके बाद लेने वाले को अपनी चॉइस बनाने का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम करता है। तो हम चॉइस आमतौर पे क्या देते हैं, हम हर तरह की चॉइस देते हैं। हम क्लासेस में भी पढ़ाते हैं तो फिल्मी गाना भी उस राग में बताते हैं, बंदिश भी उस राग में बताते हैं, उसको किसी इंस्ट्रूमेंट में वो ट्यून कैसी बनती है उसको भी बताते हैं, डिफरेंट रिदमिक पैटर्न में उसको डालते हैं, फिर उसको प्रस्तुत करते हैं। और जिसकी जिज्ञासा होती, बच्चे सब कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर भी कोई सरताज बन जाता है हमारा विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी जो है वो क्लासिकल सिंगर बन जाता है, कोई गजल सिंगर बन जाता है, कोई फोक सिंगर बन जाता है। तो सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार क्या करते हैं, सब अपने को डेवलप कर लेते हैं। तो ये संगीत में आना और संगीत के लिए पहले जानकारी लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब सवाल उठता है कि फिर रियाज क्या करें। अब रियाज करने के लिए हमारे पास स्वर हैं जो मैंने अभी बताए, सारे गामा पधा नी। तो ये सातों स्वरों का ही रियाज हम क्यों करें और सातों स्वरों का रियाज हम कैसे करें? तो सबसे पहले सा का रियाज करते हैं। सा स्वर का रियाज करते हैं, और स्वर तो हम अपनी स्केल अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ गाने के लिए सा शब्द का प्रयोग करते हैं, सा पद का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा शास्त्र करता है कि उस सा का ही प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो कहते हैं
ये सा शब्द उच्चारण करने में इतनी ताकत है कि वो हमारी सारी जितनी भी ग्रंथियां जो उच्चारण के लिए प्रयोग होती हैं, ये सबको क्या कर देता है, ये झंकृत कर देता है, सबको रेजोनेट कर देता है, सबको वाइब्रेट कर देता है। तो एकदम उसका असर क्या होता है, इस गले का असर एकदम ब्रेन पे चला जाता है। तो सा कहने से कौन कौन सी तंत्रियां गले की हमारे कंठ स्वर में आती हैं, तो नासा, कंठ, उर, तालु और दंत और जिह्वा। तो यही 6 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों से हम वाणी का उच्चारण करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं। तो नासा, कंठ, उरः, तालु, दंता, जिह्वा च संश्रिता, षड्वी जायते यस्मात् तस्मात् षड्जस्मृता। तो इन छहों से जो उत्पन्न होता है, ये छहों को जो झंकृत कर देता है, नासिका को, कंठ को, तालु को, दांतों को, जिह्वा को, जो और उर को, दिल को, तो जो सबको झंकृत कर देता है, ऐसा स्वर जो हम उच्चारित करते हैं वो षड्ज कहलाता है। इसलिए षड्ज में ही अकेले इतनी ताकत है कि वो आपको एलिवेट कर देगा, और कुछ मत आए। किसी भी स्वर को सा मान के ही अगर हम उच्चारण करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, तो चौथे दिन अपने आप, अगर नहीं करेंगे तो अपने आप मन मांगेगा कुछ कि ये होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो वो इच्छा अपने आप से मन से होने लगती है। और फिर हम दूसरा स्वर करते हैं, ऋषभ करते हैं, गांधार का उच्चारण करते हैं। लेकिन आमतौर पे संगीत में हम लोग षड्ज के बाद पंचम का उच्चारण बताते हैं। तो पंचम, एक तो ये 5वां स्वर भी है, और दूसरा इसमें खासियत ये है कि इसमें जैसे षड्ज में 6 स्थान झंकृत होते हैं, उसी तरह से ये पंचम में 5 स्थान झंकृत होते हैं। उसमें उर का स्थान कम रहता है, और प जब कहते हैं तो नेजल भी नहीं होता है। तो इस तरह से उर का स्थान है तो, लेकिन कम है, लेकिन नेजल नहीं है। ये अनुस्वार हट जाने पे पा उच्चारण जो है वो कंठ ध्वनि हो जाती है। तो सा और प जिसने अगर साध लिया तो मानो संगीत उसका होने लगता है, संगीत से उसका रिश्ता जुड़ जाता है। और वो साउंड, तो वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है बहुत सारे गीत और बहुत सारे कुछ सीखे होने चाहिए। एक ही स्वर अगर साधना शुरू कर देते हैं तो उसी में एलिवेट होना शुरू हो जाते हैं, उसी में आनंद आने लगता है। तो इन्हीं स्वरों के ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन करके हम लोगों ने बंदिशें बनाई हैं, हमारे उस्तादों ने बंदिशें बनाई हैं, हमारे आचार्यों ने श्लोक, मंत्र, पद, बानी, गीता, रामायण, कितनी फॉर्म में म्यूजिक हमारे पास आया है। तो अब ये अपने पे है कि हम कंटेम्परेरी को लेते हैं, या हम ट्रेडिशनल को लेते हैं, या हम सो कॉल्ड जिसको आज रिलीजियस कहते हैं। तो रिलीजियस ऐसी कोई चीज नहीं होती, रिलीजियस सारी अपना विश्वास होता है कि जिसको हम उच्च धरातल पर मानते हैं। वैसे संगीत में सब कुछ उच्च धरातल पर होता है। सभी शास्त्र ग्रंथ, सभी गान ग्रंथ, सभी तरह का लिटरेचर जो है वो उच्च ही होता है, वो प्रशंसनीय होता है, वो अनुकरणीय होता है संगीत की दृष्टि से। लेकिन जिसकी जहां रुचि होती है वो उसको अपने साथ जोड़ता है, उसके साथ अपने का रिश्ता जोड़ता है। इंस्ट्रूमेंट में शब्द नहीं होते, लेकिन वहां पर एक शब्द का, ट्यून का दायरा रहता है, तो उसको लेकर के हम उसका अभ्यास करते हैं। तो इन सारी चीजों को करने के लिए एक गाइडेंस की जरूरत तो होती है। लेकिन आज जो साधन उपलब्ध है, हमें ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स बहुत हैं, सब तरह की रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, सब तरह की सुनिए, जो आपकी सिलेक्शन में आपको अच्छा लगे तो उसको लीजिए। समय की मेरा ख्याल सीमा है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से उन सारे क्लिप्स को सुनाना और उन सारे क्लिप्स के एक एक का एनालिसिस करना तो मैं नहीं समझती कि इस समय उचित हो पाएगा। तो लेकिन अवेलेबिलिटी है, सब कुछ होता है। और बड़ू साहब को तो इतना
ये एक तरह का वरदान है। यहाँ रोज जो सवेरे वाणी का उच्चार होता है, और स्पेशली तंत्री साजों के साथ जो होता है, वो एक अपने आप में पूरे एटमॉस्फेयर में जो एक रंग भर देता है, जो एक आनंद भर देता है, उसको महसूस करना हमारा अपना एक तरह का फर्ज भी है, और हमारा एक तरह से उसका अनुकरण करना एक अपनी ट्रेडिशन भी है और आनंद भी है। तो ये आनंद कब आएगा? जब आनंद की उस दायरे में हम अपने आप को लाएं। अब किसी जगह पे कहें कि नहीं, मैंने इतना संगीत सुना, उतना सिखाया भी मुझे किसी ने, बंदिशें भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन मुझे आनंद नहीं आया। तो आनंद आने के लिए, उस स्थिति पे आने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो म्यूजिक जो है एक अनुशासन सिखाता है, और एक बाकी सारी चीजों से हट करके किसी एक चीज के साथ जोड़ता है। योग में लोग कहते हैं, योग में आमतौर पे योग की परिभाषा क्या देते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोधा योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना योग है। लेकिन अब निरोध करके लगाएं कहाँ चित्त को? उस मन को लगाएं कहाँ? तो कहीं लगाने की भी तो जगह होनी चाहिए ना। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है, आप देखिए मेडिटेशन के, या जहाँ वो स्ट्रेस रिलीविंग कैंप्स होते हैं, या जहाँ एंजाइटी ब्रेकिंग कैंप्स होते हैं, या वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ क्या होता है, आमतौर पे जो टीचर है वो क्या कहते हैं कि आप मेडिटेट करिए और ये समझिए कि हम कुछ नहीं सोच रहे। अब देखिए, कुछ नहीं सोच रहे भी तो एक मेंटल स्टेट है ना। तो कुछ न सोचने से निगेटिविटी की ओर मन जाता है, और कुछ सोचने से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। Thank तो you. कुछ सोचना जो है वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, ये जुड़ना जो है, इस जोड़ने को सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई काम करता है तो वो संगीत करता है। एक छोटी सी एक कहानी बताती हूँ आपको, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के पास गया। अब ये बड़ा अच्छा है, छोटा सा वाक्या है। अब इसको सुनोगे तो आप देखोगे जिज्ञासाएं कैसे आती हैं, और जिज्ञासाएं कैसे शांत भी होती हैं। तो भृगु ऋषि की बात है, और भृगु ऋषि का पुत्र जो थे वरुण उनके पिताजी थे। तो ये वाक्या है कि भृगु जो है वरुण के पुत्र अपने पिता वरुण के पास जाते हैं। तो वहां जाकर के कहते हैं कि हमें अध्यात्म का उपदेश दो, हमें आनंद का उपदेश दो, हमें ब्रह्म का उपदेश दो। हमारे यहाँ ब्रह्म परिभाषा है उसकी, जो अलौकिक, जो आनंद की, जो रस की अनुभूति होती है उसकी। तो वो कहते हैं कि वहाँ वो पिताजी उसके, अब आज मल्टीपल चॉइस के जो हम सवाल देखते हैं, तो वहां वरुण भी उसको मल्टीपल चॉइस का एक चार्ट देता है। वो कहता है देखो, ब्रह्म की जगह वो है, आनंद की जगह वो है, रस की जगह वो है, जहां पे सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, और जिससे सब प्राणी बढ़ते हैं, और फिर अंततः उसी में सब प्राणी लीन हो जाते हैं। यही आनंद की परिभाषा है कि जहां आए वहीं जाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। तो इसको जानना कैसे है? तो उसके पिताजी कहते हैं कि इसको जानने का टूल भी है, टूल किट भी साथ में है। इसको कैसे जानना है? कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तुम इसको तप से जानोगे। किसी के किए हुए कर्म से किसी को लाभ नहीं होगा, अपने अपने तपना पड़ेगा, तप से जानोगे। अब वो बच्चा तप करने चला गया। थोड़े दिन के बाद उसने सारा ऑब्जर्व किया, सारे यूनिवर्स में, कि ऐसी क्या चीज है जिससे हम पैदा होते हैं, ऐसी क्या चीज है जिसको हम खा के बढ़ते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। सो देन ही रियलाइज्ड कि हम रोज रोज अन्न खाते हैं और अन्न से ही बढ़ते हैं। तो अब शास्त्र बताता है कि अन्न ही जो है वो आधार है जीवन का, और अन्न खा करके ही हम क्या हो जाते हैं, सब प्राणी तृप्त हो जाते हैं, मस्त भी रहते हैं। अब वो पिताजी के पास जाके कहता है कि मेरे को पता चल गया कि ब्रह्मत्व क्या है, आनंद रस असली सुख कहाँ छिपा है।
तो कहती है कहाँ, कहते हैं अन्नम व्यन्नम अन्नम ब्रह्म इति व्याजानात, मैंने अन्न को ही ब्रह्म जाना। जो आपने शर्तें कही थी अन्न में सारी पूरी होती हैं, और अन्न से ही शुक्र बनता है, अन्न से ही शोणित बनता है, प्रोजनी अन्न से ही होती है, फिर आगे जब बच्चा पैदा होता है तो अन्न खा के ही जीवित रहता है, और अंततो गत्वा जब उसकी मृत्यु हो जाती है अन्न ही छूट जाता है, धरती में अन्न में ही विलीन हो जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा समझा आपने। लेकिन उसको शांति नहीं हुई। थोड़े दिन के बाद कहे कि अच्छा अगर अन्न ना भी खाओ तो भी मरते तो नहीं है। अब वो फिर सवाल लेकर के पहुंच गए अपने पिताजी के पास। अब वो कहते हैं कि अन्न तो थोड़े दिन ना खाओ तो भी जीवित रहता है, लेकिन फिर बताओ ये आनंद और ये रस और ये अल्टीमेट जो ब्लिस की अवस्था ये कैसे मिलेगी? वो कहते मिलेगी तो वैसे ही तप करो, तप से मिलेगी। नाउ ही गोस अगेन। अब वो फिर तप करता है। अब देखिए ग्रेडेशन कैसे, एलिवेट कैसे होता है। अब दूसरी बार वो कहते हैं कि प्राणम प्राणम ब्रह्म इति व्याजानात, कि प्राण जो है वही तो ब्रह्म है। प्राण का ही श्वास आना निश्वास होना, अगर शरीर है भी है, अन्न खाया भी हुआ है, अगर उसमें वायु नहीं मिली, सांस नहीं आई, तो वो खत्म हो जाएगा। प्राण से तो वो खत्म हो जाएगा एकदम, शरीर पड़ा भी रहेगा, शव हो जाएगा। तो उसने कहा इसका मतलब अन्न से ऊपर एक धरातल है, प्राण, प्राण का आना जाना बहुत जरूरी है। तो उसने कहा ठीक है, आपने समझ लिया, अच्छा। अब थोड़े दिन बाद फिर वो बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है कि लोग तो, ऋषि लोग तो प्राणायाम कर लेते हैं, प्राण का भी साधन कर लेते हैं, अनुलोम विलोम क्रिया कर लेते हैं, तो फिर उससे मानसिक शांति और आनंद उसमें तो फिर भी नहीं हुआ। फिर भी एक स्टेज तो कहीं ना कहीं तो दुख है ही। वो फिर क्या स्टेज है, वो कैसे जाने? वो कहते तब से ही जानो। अब फिर तीसरी स्टेज पे जब वो आता है, वो कहता है मना ब्रह्म इति व्याजानात, ये एक शरीर के बीच में प्राण है, प्राण के बाद एक तत्व और है, मन है, और हमारा अगर मन नहीं लगता कहीं तो ये सारे मानसिक रोग उसी के कारण होते हैं। और जब मन लग जाता है तो सारे रोग जो है हम क्या कर लेते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए मन जब अन्न की तरफ जाता है तो वो कर्म इंद्रियों की तरफ ही रहता है, खा लेना है, बैठ लेना है, सो लेना है, या सेक्सुअल एंजॉयमेंट, जो भौतिकवादी जितने भी सुख हैं वो मन उस अन्नमय कोश में रहता है तो उसमें रहता है। प्राणमय कोश में रहता है तो वो ऋषियों की तरह प्राणायाम करता है। लेकिन यही मन जब अब ऊपर की स्टेज पे जाता है, जब वो चौथी अवस्था में ढूंढता है, तो कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, ये तो लग नहीं रहा कहीं, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? असली तो कारण यही है, सुख का भी, दुख का भी, आनंद का भी। इसलिए हमारे यहाँ मनोविज्ञान को, मन की चेतना को, मन की चेष्टा को, मन के वशीकरण को और मन को कहाँ लगाना है, इस पर हमारे यहाँ बहुत चिंतन हुआ है, जिसमें कि मेन रोल म्यूजिक का ही फिर आता है। अब वो चौथी अवस्था में कहते हैं कि मन भी ऐसा है कि वाणी झूठ बोलती है, मन चोर है, इधर लगाता हूँ इधर भाग, इधर लगाता हूँ इधर भागता है, तो मन का क्या करे? तो फिर उसने कहा कि उससे एक तत्व ऊपर और है, उसका नाम है विज्ञान, बुद्धि जिसको कहते हैं, कि अगर मन को कहीं विज्ञान में लगा दे, विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, विज्ञान का मतलब है विविध शास्त्रों में किसी भी तरह के ज्ञान में अगर हम लगाते हैं, उसको मन को जोड़ लेते हैं, तो हमारी एंजाइटी, हमारे जो है एक प्रोग्राम मिल जाता है। जैसे मैं किसान हूं तो मैं खेती में ही अपना मन लगा लेती हूँ, तो मैं आनंद में रहती हूँ। मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग में ही अपना मन लगाती हूँ, तो मैं आनंद में रहती हूँ। या मैं खिलाड़ी हूं तो खेल ही मेरा विषय है, या मैं साइंटिस्ट हूं तो रिसर्चेस ही मेरा विषय। तो ये जो विविध ज्ञान है, यहाँ पे आकर के अगर ये चौथी अवस्था मन इधर को जाता है, तो ये स्थिति क्या हो जाती है, ये ज्ञानवान होने की स्थिति हो जाती है। तो पाश्विक गुणों से उठ करके मनुष्य इस गुणों तक में आ जाता है। इसीलिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, इसीलिए किसी ना किसी आर्ट फॉर्म के साथ उसको जोड़ा जाता है।
अब वो कहते हैं कि बुद्धि के चमत्कार में भी तो हमने तो देखा आईआईटी का इंजीनियर हो या इतना बड़ा डॉक्टर हो या कोई और प्रोफेशन में बिजनेसमैन बड़ा हो, फिर भी वो मन उसका क्यों नहीं लगता, फिर भी वो उदास क्या। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी हार्ट बीट भी ठीक है, न्यूरो के पास जाते हैं जी सारी सेंसेस ठीक काम करती हैं, फिर वो कहता है मेरा मन नहीं लगता। तो फिर कौन सा मन नहीं लगता, वो मन कौन सा है? सारा शरीर स्वस्थ होते हुए, सारे वाइटल ठीक होते हुए, सारे ऑर्गन्स काम करते हुए, सारी शिक्षा प्रशिक्षा होते हुए, सब तरह के जीने के साधन होते हुए, फिर एक तत्व क्या है, फिर कहते जी नहीं मन नहीं लगता। तो वो कौन सा मन है जो जो डॉक्टर की दृष्टि से भी ठीक है, प्रोफेशन की दृष्टि से भी ठीक है, परिवार की दृष्टि से भी ठीक है, समाज की दृष्टि से भी ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। तो मेरा ये खुशी या मेरी ये उदासी ये क्या हो जाती है, मेरे बिहेवियर पे उसका असर आता है। जब मेरे बिहेवियर पे असर आता है तो समाज पे उसका असर होना शुरू हो जाता है। मैं चिड़चिड़ा, मैं अलूफ रहने वाला, या कभी कभी ऐसा चिंतन करना मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इस स्थिति के बाद फिर उसने अपने पिताजी से जाके पूछा कि विज्ञान के बाद भी तो ऐसी स्थितियां आती हैं मन की, तो फिर क्या चीज ऐसी है जो कि जिसमें आनंद है, जो ब्रह्म है वो क्या है। तब वो कहता है कि जब आप अपने अंदर जिस चीज से अच्छा महसूस करोगे वो आत्म आनंद होगा। वही आनंद आपको कहाँ जोड़ेगा, जहां से आप आए थे, जिस परमात्मा से आप आए थे। अन्न से आप नहीं आए थे, आपके आने का कारण कोई और था, निर्धारित हुक्म की तो और होया सी, तब आप यहाँ आए थे। तो उसके साथ जुड़ने के लिए क्या है, उसके साथ सिर्फ ज्ञान नहीं जोड़ेंगे, उसके साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, जिससे आपके मन के एक्सप्रेशन जिसमें निकल सके। कई चीजें हम भाषा से नहीं कह सकते, कई चीजें हम समाज में वैसे नहीं कह सकते, लेकिन वही बात जब कविता के माध्यम से कहते हैं, जब म्यूजिक ट्यून्स के माध्यम से कहते हैं, तो हमारा हार्ट जो है वो टच करते हैं। हमारे जो संवेग हैं, जिसको हम अपनी संवेदना कहते हैं या वाइब्रेशंस कहते हैं या इनर मोस्ट फीलिंग कहते हैं, जो बड़ी सबल फॉर्म में होती, जो अपने को ही पहचानना भी कभी कभी मुश्किल होता है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे यही नहीं पता चलता। तो ये जो सबल फॉर्म में जब आते हैं, तब हम किसके साथ जुड़ते हैं, फिर हम कलाओं की खोज में जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि परमात्मा ने क्या किया, उसने कला का निर्माण किया। तो जब उसने कला का निर्माण किया तो उसमें वो कला कैसी थी, वो कहते वो रसो वैसा, वो कला उसकी रस थी। तो ये रस उसको जिस जगह पे आ जाए, अब उसकी 5 ग्रेडेशन बना दी। उसके पिताजी ने उसको ग्रेडेशन वाइज समझा दिया कि एक अन्नमय कोश था, एक प्राणमय कोश था, एक मनोमय कोश था, एक विज्ञानमय कोश था, लेकिन अल्टीमेट जो हमें चाहिए था वो आनंदमय कोश था। और उसको क्या आएगा, उसको रस आएगा। रस कैसे आएगा, रसो वैसा, वो ब्रह्म जो स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो आनंद, जिसको हम सत्य चित्त आनंद कहते हैं, वो आनंद कैसे आएगा, वो म्यूजिक से आएगा। तो जो एक्सप्रेशन हम नहीं भी कह पाते, जो एक्सप्रेशन हम महसूस करते हैं, लेकिन म्यूजिक जो है वो कोई तंत्री, कोई ट्यून, कोई शब्द, कोई गीत, कोई ऐसा छू जाता है कि वो बार बार उसको सुनने को दिल करता है, बार बार उसको सीखने को दिल करता है और बार बार उसको समझने को दिल करता है। तो ये एक विशेषता है संगीत की। इसीलिए संगीत जो है उसके लिए लैब बहुत जरूरी है, अगर हम इस तरह के ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि किसको क्या पसंद है हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। 2-4 दिन जैसे वो बैठेगा, 1 आध महीना जैसे बच्चा बैठेगा, जिस संपर्क में आएगा, तो उस संपर्क में उसके टेस्ट भी डेवलप होने शुरू। कई बार होता है मुझे आज ये अच्छा लगता है, लेकिन किसी आयु के बाद कुछ और अच्छा लगने लग जाता है। तो ये सारी स्टेजेस में कंटेंट भी बदलते हैं, थॉट भी बदलते हैं, मैच्योरिटी भी बदलती है। पर एक चीज जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा ओवर पावर करती है और जो जो हमेशा हमारे एक्सप्रेशन को दुगना करती है और हमें सूद करती है, वो है संगीत।
वो है रिद्म। यही मुझे आज के इसमें कहना था। तो चलिए संगीत से मिलें, संगीत सीखें, संगीत सिखाएं, संगीत सुने और सब जगह पूरे विश्व में संगीत का मैसेज दें ताकि लोग मन से स्वस्थ हों। हमारा शास्त्र कहता भी है तन में मना शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन जो है जब अच्छे संकल्प वाला होगा, जब अच्छे सोच वाला होगा, तो वो क्या करेगा, यह स्वम कृष्णम मनते, जो अपने को पूर्ण समझता है, तो गायते वा, वो गाता है, गीते वा रमते, या फिर वो गीत में रमन करता है। तो लेट्स गो टू द फुलनेस। थैंक यू सो मच भारत, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप तो मेंटल हेल्थ की जो जड़ से इशू है ना, वो बता दिया आज। बहुत अच्छा किया, बहुत डिटेल में, कॉम्प्रिहेंसिवली। और आपका हम शुक्राना कर ही सकते। आपको हमने रिक्वेस्ट किया, आप फटाफट आ गए हैं, एंड बहुत अच्छा लगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन हो गया। और आप दोनों का इस सेशन में, अब आस्था लुथरा जी का और आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिला और इन विषयों के साथ मिलकर के इस तरह से कहने का भी अवसर मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कीप ऑन ब्लेसिंग्स। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैम, हम सारे आपके बहुत आभारी हैं। रादर ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी जो इतनी नॉलेज है, योर एन ओशन ऑफ नॉलेज, एंड उसकी हमें एक छोटी सी बूंद मिली। एंड इट वाज लाइक अ ग्रेट pleasure of having you here. Thank you so much. And thanks to Miss Astha Luthra ji as well. And I am sure कि आज हम सब ने म्यूजिक के बारे में कितना कुछ जाना है और आज से हम कैसे उसको एज अ थेरेप्यूटिक टूल यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज अ न्यू थिंग। आगे भी सुनते हैं, बट नाउ हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसकी हीलिंग की तरफ जाएगा। So all of the dear children, our respected principals, teachers, and everyone else who has joined us, thank you for joining us, and we'll connect tomorrow for the new session. Thank you so much. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. We'll end this session now.